into height. अब height is vertical height that goes on center पे जा रही है तो कहाँ पे जाएगी? That will go on diagonal. वो कहाँ पे जाएगी बेटे? Diagonal पे. यहाँ पे ये perpendicular होगा. Means जो height लेनी है that as will be slant height. ये as ये slant height होगी pyramid की and that will be vertical height. We have to take here vertical height. तो कोई भी solid in which there is base but not top. Top is a point only. Then its volume will be. तो इसका volume क्या होगा बेटे? That will be 1/3 base area into height. कोई भी solid in which there is बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इनटू हाइट. वेदर इट इज प्रिज्म, चाहे प्रिज्म है, चाहे हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, चाहे सिलेंडर है. जैसे व्हाट इज ए प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. इट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, टू ट्रायंगल्स एंड इफ यू जॉइन द वर्टिसेस देन फिगर ऑब्टेन्ड इज ए प्रिज्म. यहाँ पे जो फिगर मिली हमें क्या मिली? वो प्रिज्म मिली. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? base area into height. The volume of that solid in which base and top are identical, volume will be base area into height, and volume of that, so there is volume will be 1/3 area of base into height. So here in our question we have a pyramid. हमारे पास एक pyramid है which has base जो उसका है hexagonal base है. It is hexagon. ये हमारे पास एक hexagon है. Am I audible to you? Yes. क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. It is hexagon and I take any point, कोई point लेता हूँ, and if we join these points to vertices of hexagon, hexagon के vertices हम join करते हैं तो जो figure obtained हो रही है that is a pyramid. वो हमारे पास कैसा pyramid मिल गया? hexagonal pyramid मिल गया. इसमें दे रखा है there is a pyramid on a base with a regular hexagon of side 2a. इसकी side क्या है? Each side 2a and slant edge that is L is 5a by 2. For finding volume we require height, vertical height. तो vertical height जो बनेगी बेटे, इसका मैं center लूंगा तो center पे जो perpendicular बनेगी that will be vertical height. ये height हमें निकालनी है. इस फिगर को मैं अलग से बना रहा हूं, एक बात ध्यान से देखें. जो मेरे पास हेक्सागोन की साइड थी that was 2a और सेंटर से मिलाया तो ये क्या बनेगी? that will be equilateral triangle. और ये जो हाइट है that will be, ये जो हाइट है that will be vertical height. इमेजिनरी फिगर बन रही है and that is slant height. ये slant height है. ये एंगल जो होगा ये 90 होगा क्योंकि इसके ऊपर अगर हम एक पेन को या किसी भी रोड को वर्टिकली स्टैंड करते हैं तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो जो रियल फिगर बनेगी ये भी क्या आएगी? इक्वल टू साइड. तो हमारे पास जो एक्चुअल फिगर आएगी, मतलब जो रियल ट्रायंगल बनेगी that is L, that is H and that is L. and L क्या मेरे पास 5a by 2. तो H क्या आएगा बेटे? H is equal to L square slant height जो है उसका square 25a square by what it remains 16 square it becomes 9. 25 minus 16 9a square by 4 that is 3a by 2. It is vertical height of pyramid. pyramid की vertical height आ गई. Now we have to find volume. volume क्या होगा? 1/3 किसी भी solid का volume in which there is base but not top. base area into height. हो जाएगा 16 बेटे? Yes, sir. So 1/3 into 6 times equilateral triangle. hexagon का area 6 into equilateral triangle √3 by 4. 2a का square 4 square into height 3a by 2. We have to simplify it. इसको हमें simplify करना है. 3 से कैंसिल हो गया 2 पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. इट इज 3√3a क्यूब. क्या बनता है वॉल्यूम? 3√3a क्यूब यूनिट्स क्यूब. जो भी यूनिट थी हमारे पास that will be volume of pyramid. Next question है, if a regular square pyramid has a base of side 8 and height 30 then volume. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो यही क्वेश्चन बन गया हमारे पास. यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड हमारे पास, स्क्वायर पिरामिड इट विल बी स्क्वायर पिरामिड. ये मेरे पास क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड होगा. इट इज स्क्वायर पिरामिड. इसकी हाइट दी हुई है, हाइट एंड बेस इज साइड a not a, it is 8 and height h vertical height that is 30. तो सीधा वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया तो क्या बनेगा? स्क्वायर इनटू हाइट 38 को रख दें, क्या बन जाएगा हमारे पास? 64. नेक्स्ट में करें 2 साइड्स. हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. In question third, any student have problem? In fourth,
फोर्थ में हमारे पास क्या है, एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम के फिगर देखिए, फिगर से मैं बता पाऊंगा। इट इज ए फ्रस्टम, फ्रस्टम है, कह रहा है कि एक जो कोन है वो इसको कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उस कोन का और फ्रस्टम का जो बेस है वो क्या है हमारे पास सेम है। तो कोनिकल कैविटी एक फ्रस्टम के अंदर बनाई गई है, फ्रस्टम था, नीचे से कोनिकल कैविटी बना दी। रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम हमें बताना है। रेडाई ऑफ बेस एंड टॉप, बेस रेडाई हमारे पास 6 है और टॉप रेडियस हमारे पास क्या है 3। R1 कहूं तो मैं 6 है और R2 कहूं तो क्या है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम, इसकी टोटल हाइट कितनी है 8। देयर इज ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 3, कोन की हाइट क्या है 3। देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन दिस सॉलिड, सॉलिड में कितना वो है वॉल्यूम है या मटेरियल लगा है, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा बेटे, 1 मिनट। व्हाट विल बी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इस सॉलिड का, वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्व ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, अरे sir. बोल तो दीजिए। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है वो अच्छा है, फिफ्थ क्वेश्चन। इफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स DF, AG एंड CE ऑफ क्यूब शोन इन द adjoining figure, that is there is a cube A है यहाँ पे फिगर में और उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। कौन से डायगोनल दिए हुए हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल दिया हुआ है या फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है, वो फिगर में जो हमारे पास नाम है उससे क्लियर होगा। इट इज ABCDFG। सपोज इट इज H, ये मान लिया मैंने H है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड हो गया। डायगोनल दे रखा है इसका DF, डायगोनल दे रखा है इसका AG एंड डायगोनल दे रखा है इसका CE। फिगर आर इक्वल इन 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा हूं तीनों डायगोनल से क्या बनती है, जो तीनों डायगोनल दिए इनसे क्या बनती है, एक ट्राइंगल बनती है। आई कैन नॉट से इट इज इक्विलेटरल, वो हम डायगोनल देखेंगे तब पता चलेगा। देन रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल विल बी, तो डायगोनल वो DF डायगोनल देखिए क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है, लोअर एज कॉर्नर को मिला रहा है तो अपर एज कॉर्नर को मिला रहा है। AG है, AG भी लॉन्गेस्ट डायगोनल है, A से G को मिलाएंगे हम। और CE इट इज CE भी क्या है, ऊपर वाले एज से लोअर एज को जा रहा है, तो तीनों डायगोनल क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ जो क्यूब होगा वो क्या होगा, √3 है। A इज साइड, ए मैंने साइड ले ली तो डायगोनल क्या होगा √3 है। तो तीनों ही DF इज इक्वल टू AG इज इक्वल टू CE, दैट विल बिकम इक्वल टू D। वो किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल, एंड D इज √3 है। डायगोनल क्या हो गया √3। तो जो ट्राइंगल बनी डायगोनल से, वो ट्राइंगल मेरे पास क्या बनेगी, that has side √3, उसकी साइड क्या आएगी √3 है ईच साइड, that will be equilateral। और इस ट्राइंगल के हमें सर्कम रेडियस बतानी है। what will be circum radius of any triangle, किसी भी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी, ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट बिकम्स ABC, ABC क्या बनता है, √3 है, √3 है, √3 है, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 A क्यूब, दैट बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल √3 by 4 A स्क्वायर। √3 A का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास 3 A स्क्वायर, तो दैट बिकम्स 3√3 A स्क्वायर अपॉन 4। सर्कम रेडियस में फाइंड करनी थी बेटे, तो वो हो जाएगी मेरे पास 3√3 A क्यूब अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3√3 A स्क्वायर अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3√3 से 3√3 और A से A, तो इट इज इक्वल टू A। सर्कम रेडियस क्या है हमारे पास AI एंड A वाज एज ऑफ, A क्या था हमारे पास एज ऑफ क्यूब, तो सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। वो किसके इक्वल होगी, क्यूब के एज के इक्वल होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दे रखा है, एक फ्रस्टम एंड माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। फ्रस्टम है, सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। इसमें जो भी पार्ट पूछा है, वॉल्यूम वगैरह पूछा है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम आपका आ सकता है। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम प्लस टोटल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा। और टिन का एरिया पूछता है तो बेटे आवाज नहीं आई आपकी क्लियर। सर ऊपर हेमिस्फीयर भी है। Yes, sir. ऊपर हेमिस्फीयर भी है, ऊपर हेमिस्फीयर भी है, तो प्लस हेमिस्फीयर थर्ड पार्ट हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर।
थर्ड पार्ट हो गया हेमिस्फीयर, वॉल्यूम हो गया। और एरिया पूछता है तो एरिया क्या बनता है, इफ इट इज सॉलिड, अगर इसका बेस भी है तो क्या हो जाएगा, लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट जो 3 है, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सॉरी नॉट सेकंड, फर्स्ट पार्ट, इट इज फर्स्ट, और प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेकंड पार्ट का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ सी। इसको देखना, आप कर लोगे इसको। तो एक 8th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक मिल्क वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी है, इज ए गवर्नमेंट ओन्ड मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अर्लियर दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन बोटल्स एज शोन इन द फिगर फॉर ₹8 पर बोतल। नाउ आपने अमूल की और किसी की मिल्क बोतल देखी होंगी, वो इसी शेप की होती है बेटे। बोतल है दैट इज सिलेंड्रिकल, उसका जो नीचे से है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, एंड अपर पार्ट जो है दैट इज ए फ्रस्टम। वो हमारे पास क्या है, एक फ्रस्टम है। इट इज अ बोतल। कह रहे इस बोतल को कितने रुपीज में बेच रहा है, वो 8 रुपीज में बेच रहा है वो पहले तो इस बोतल को। एंड however they do not want, उसके बाद इसने कहा now they have decided to reduce the price per bottle by 50 पैसा। पहले कॉस्ट थी इस बोतल की 8 रुपीज, अब इस बोतल की कॉस्ट उसने 50 पैसा घटा दी कंपनी ने, तो वो रहेगी हमारे पास 750 by reducing the size of the bottle. However, they do not want the old customers to notice this change in the size of the bottle. वो ये चाह रहे हैं कि कस्टमर को पता नहीं चले कि बोतल की साइज चेंज हुई है, उनको ये लगे कि भाई कंपनी ने आपको जो मिल्क की कॉस्ट है वो लेस कर दी है। So they plan to reduce the circumference of the opening of the bottle without changing the height of the bottle. What is the new circumference of the opening? ओपनिंग का न्यू सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पहले ओपनिंग का सर्कमफ्रेंस था हमारे पास 8 सेंटीमीटर, फ्रस्टम जो पार्ट था उसकी हाइट थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट थी दैट वाज 4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वाज 12 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम का ये पार्ट भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। कंपनी ने क्या खेल रचा, कंपनी ने किया कि देखने में शेप वही रखी, शेप को चेंज नहीं किया। कंपनी अपना लॉस नहीं करना चाहती और कस्टमर को पता नहीं चलने देना चाहती, तो कंपनी ने जो ओपनिंग माउथ था उसका डायमीटर कम कर दिया। ये पहले 8 था, अब ये कम कर दिया, मींस x जो है वो लेस देन 8 है। कितना लेस है, दैट वी हैव टू फाइंड। जो अदर डायमेंशंस हैं दैट रिमेन सेम, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसको किससे करेंगे हम, कॉस्ट से लेंगे बेटे। कितना चेंज आया है, उसकी कॉस्ट क्या है, जो वॉल्यूम था उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या है, 8 रुपीज है, चेंज आया है 50 पैसे का, तो 50 पैसे में कितना वॉल्यूम कम हुआ, वो वॉल्यूम हमें सेकंड पार्ट में कम करना है, सेकंड पार्ट में कम करना है। डिफरेंस इन कॉस्ट से लेना है हमें, डिफरेंस इन कॉस्ट, कॉस्ट से डिफरेंस कितना है, दैट इज 50 पैसा, मींस ₹1/2, 1/2 रुपीज डिफरेंस है कॉस्ट का। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे आप ऑल स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, आई एम Yes, sir. नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैं बेटे पूछ रहा हूँ, क्या आप क्वेश्चन को कर पाओगे इसको? सर ये वाला सर एक बार करवा दो सर, ये हुआ नहीं था कल। हुआ नहीं था, चलिए देखिए। तो पहले तो बेटे हम वॉल्यूम निकालेंगे कि 8 रुपीज में कितना मिल्क आता है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट बोतल है, तो वॉल्यूम इसका क्या आएगा, V1 आई एम टेकिंग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, मान लो R1 मैंने ले ली, कितनी है मेरे पास 6, और R2 मेरे पास क्या है 4, R1 रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड R1 R2 रेडाई ऑफ द फ्रस्टम। तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, सपोज कैपिटल H इट इज हाइट ऑफ दिस cylindrical part and small h height of this frustum part, h small h मान ले मैंने हाइट frustum part की, प्लस frustum का वॉल्यूम 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, व्हाट दैट कम्स, वो क्या आता है हमारे पास? सर, हाँ बेटे, सर आपने ऊपर ये 8 लिया, ये डायमीटर भी तो हो ये सकता है। डायमीटर, हाँ डायमीटर, ये बेटे मैंने रेडियस देखे 4 लिए, मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा R1 6 R2 4, इट इज डायमीटर।
इट इज डायमीटर, डायमीटर ही दिया है, हो सकता नहीं है, इट इज डायमीटर इटसेल्फ। तो रेडियस क्या आएगी? 4 आएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है अभी, ये बात दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ तो पाई कॉमन बेटे, तो r1 स्क्वायर, r1 कितना है? 6, 36 इंटू h कितना है मेरे पास? हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज 4 प्लस 1/3 h कितना है मेरे पास? हाइट ऑफ फ्रस्टम दैट इज 3 इंटू r1 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस r2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस r1 r2 24। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई इंटू 36 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स 144। क्या आएगा हमारे पास? 144 प्लस 16 प्लस 24 40, 40 प्लस 36 क्या बनता है? 76। एंड इफ वी ऐड दिस टू, इन दोनों को ही ऐड करते हैं तो क्या आता है? 220 220 इट इज 220 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर मिल्क को ये कितने में आता है? ₹8 में। तो इन ₹8 one can buy, in ₹8 we can buy how much milk? 220 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन ₹1 में क्या आ जाएगा हमारे पास? 220/8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड इन 50 पैसा या इन ₹1/2, 1/2 रुपीज में कितना आ जाएगा? 220/8 इंटू 2 हो जाएगा 110, और 4 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 पे 2 से 4 पे, एंड इट इज 55। तो क्या आती है? 55/4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना मिल्क आता है हमारे पास? 50 पैसे में। ये हमें निकालना था। तो ये जो चीज आ गई मेरे पास, ये क्या आई? ये आई डिफरेंस इन वॉल्यूम। ये क्या आया बेटे? दोनों जो हमारे पास कैन थे, एक कैन फर्स्ट था, एक कैन सेकंड था, दोनों के वॉल्यूम में जो डिफरेंस आया इन दोनों के वॉल्यूम में, दैट इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास? 55/4 पाई। वो क्या आया? 55/4 पाई। इसकी जो रेडियस है, अपर रेडियस में क्या मान लेता हूं? दैट इज सपोज आर वी हैव टू फाइंड। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम V2 भी निकाल लें हम। V2 इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वही चीज, सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमने निकाल ही लिया था, दैट इज 36/4। या फिर से मैं इसको करूं तो सिलेंडर तो वही होगा, पाई r1 स्क्वायर h प्लस फ्रस्टम का 1/3 पाई h इंटू। अब एक चीज देखिए, R2 की जगह मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे? इन प्लेस ऑफ R2 वी हैव इट इज R। R2 की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे? R। तो उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 की जगह क्या है? R प्लस R2 स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या है? R बनेगा ये, दैट इज पाई कॉमन यहाँ पे भी। R1 स्क्वायर, R1 कितना है मेरे पास? दैट इज, एक बार फिर से लिख रहा हूं, R1 क्या था? 6 था मेरे पास बेटे, और R वी हैव टू फाइंड, R हमें फाइंड करना है। तो 36 R1 स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर इंटू h क्या था मेरे पास? स्मॉल h मेरे पास, नॉट स्मॉल h, इट इज कैपिटल H। ये सिलेंडर की हाइट है, इट इज 4 एंड स्मॉल h इज 3। स्मॉल h क्या है? 3। तो वैल्यूज रखूंगा तो ये 144 बनेगा, प्लस 1/3 इंटू स्मॉल h क्या है? 3 इंटू R1 स्क्वायर 36 प्लस R1 6R प्लस R स्क्वायर होगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, दैट कम्स पाई इंटू 144 प्लस 36 प्लस 6R प्लस R स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, वो क्या आता है मेरे पास? R स्क्वायर प्लस 6R, 144 प्लस 36 180, और इनटू में क्या आता है? पाई। इट इज V2, और V1 माइनस V2 क्या है मेरे पास? दैट इज 55/4 पाई। क्या ये चीज क्लियर है आपको कि इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है? इसकी कॉस्ट 8 रुपए थी, इसकी कॉस्ट 750 है। तो 50 पैसे में कितना मिल्क आया वो हमने निकाल लिया था बेटे, दैट वाज 55/4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वही वॉल्यूम कम हुआ है, तो दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया मेरे पास 55/4। तो दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस मैंने रख दिया V1 माइनस V2 दैट इज 55/4 पाई। और V1 क्या आया था मेरे पास? मेरे पास V1 आया था 220 पाई। 220 पाई V1 की जगह हम रख दें 220 पाई माइनस V2 की जगह क्या रखें? R स्क्वायर प्लस 6R प्लस 180 इंटू पाई
दैट इज इक्वल टू 55/4 पाई। अब पाई थ्रू आउट कॉमन है तो क्या बन जाएगा मेरे पास 220 माइनस आर स्क्वायर माइनस 6r माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 55/4। इज इट क्लियर? यस सर। और 220 में से 180 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 40 माइनस आर स्क्वायर माइनस 6r दैट इज इक्वल टू 55/4 एंड इसको मैं राइट साइड में ले जाऊं तो आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 55/4 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अगर 4 एलसीएम लेता हूं मैं, आई एम टेकिंग 4 एज एलसीएम, देन 4r स्क्वायर प्लस 24r plus 55 minus 160 that is equal to 0, or it becomes 4r square plus 24r and it is minus 105 is equal to 0। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लोगे आप? जो r की पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट विल बी आवर आंसर, कि r क्या होगा वही हमें फाइंड करना था, न्यू रेडियस या न्यू डायमीटर हमें फाइंड करना था। क्लियर है बेटे? एनीवन हैव डाउट? अरे किसी को डाउट है आंसर दिया करो बेटे, चेक किया करो, ऐसे बात नहीं बनती। नो सर। Am I audible? Am I audible? No, sir. यस Yes, sir. यस बेटे आंसर दे दिया करो, पैसे नहीं लगते, खर्चा नहीं आता बोलने में, इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी बोलोगे तब भी, ठीक है ना? तो बोला करो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, वो हमने कल के उसमें किया था, फिर भी किसी बच्चे को डाउट रह गया तो दोबारा से पूछ सकता है। ये है 9 balls of diameter 2 centimeter each are packed tightly in a box as shown, then height of the boxes। पूछना है किसी बच्चे को? नो सर। Any student? चलिए, then next है area of a square field is 24200 square meter. How long will a lady take to cross the field diagonally at the rate of 6.6 km/h? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल को मीटर में किलोमीटर में निकालना है, हमारे पास स्पीड आ जाएगी, हो जाएगा ये? यस सर हो जाएगा। स्क्वायर फील्ड है 24200, क्या है इसका बेटे? एरिया दे रखा है, तो इससे एरिया से क्या निकालेंगे? a square is equal to 24200, क्या आ जाएगी? साइड, और साइड से हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, उस लेडी को डिस्टेंस कवर करना है √2a, वो मीटर में और स्पीड किलोमीटर में दी हुई है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ ए कार्ट, ये कार्ट वाला भी हो जाएगा, आप ट्राई करना, नहीं हो तो कल जरूर पूछना। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स देन इट्स इन रेडियस, ट्रायंगल की इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। दिस सिंबल इज एरिया एंड एस इज सेमी पेरीमीटर। एस क्या है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इन रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कह रहा है a 5 centimeter cube is cut into as many as 1 cubic centimeter cubes as possible. What is the ratio of the surface area of the larger cube to that of the sum of the surface area of the smaller cubes? कह रहा है एक लार्जर क्यूब है, उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के उसमें काटा गया पार्ट में। बेटे 1 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब करूंगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरी क्लास थी, मैं आपको 15 मिनट बाद फोन करूं? जी 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 आधा नहीं, जैसे आपकी क्लास में 10th का सर्कुलेट हो गया था बच्चे की क्लास में सर, वो टीचर से मिस्टेक हो गई, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा सर जरूर, आधा घंटा एक्स्ट्रा। हाँ, आधे घंटे बाद सबमिट कर दे बच्चा सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ बेटे, तो ये क्यूब था, क्यूब को कह रहा है कि स्मॉल क्यूब्स में बांट दिया। लार्जर क्यूब का जो एज है, एज ऑफ लार्जर क्यूब, एज ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब का एज हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर, सपोज दैट इज ए, वो क्या मान लिया मैंने? कैपिटल ए, एंड एज ऑफ स्मॉलर क्यूब स्मॉल ए दैट इज 1 सेंटीमीटर है। हो जाएगा क्या क्वेश्चन? यस सर। लार्जर क्यूब का सरफेस एरिया निकालें, एस से निकालें, एस से 1 मान लें इसको, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एस से 1 6 इंटू ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 6 इंटू 25 150। और स्मॉलर क्यूब कितने बनेंगे वो देखना है हमें बेटे पहले तो
कितने स्मॉल क्यूब्स बन जाएंगे? तो 125 लार्जर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। स्मॉल क्यूब्स की संख्या आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी v1, वॉल्यूम क्या आएगा 125 अपॉन 1, तो क्या आएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स पोज x है तो कितने आ जाएंगे 125। तो सरफेस एरिया, सेकंड जो सरफेस एरिया वो पूछा है वो कितने का पूछा है 125 क्यूब्स का पूछा है, नॉट ओनली सिंगल, कह रहा है टोटल जो होल क्यूब्स होंगे उनके टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो 125 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास 1, तो 125 इंटू 6 रेशियो निकालना था, कर लेंगे आप इसको? यस सर। 4 horses are tethered at 4 corners of square field। इसी क्वेश्चन की मैं फिगर बता रहा हूँ बेटे, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 horses are tethered on each corner, each corner पे बांधे गए हैं, तो कह रहा है वो एरिया हमें निकालना है the horses cannot graze, जो horses की पहुंच के अंदर नहीं है, तो वो एरिया क्या आएगा हमारे पास that part of square not included in the circles। तो स्क्वायर के एरिया में से रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा बेटे वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया that will be equal to area of square माइनस क्या हो जाएगा सर्कल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मेक्स ए सर्कल, ये चारों क्वाड्रेंट क्या बनाएंगे एक सर्कल बनाएंगे, इसकी रेडियस क्या है सेम। ऐसे तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे देखते चलिए। कह रहा है कि 16th क्वेश्चन 17th हो जाएगा बेटे, इजी क्वेश्चन है। कौन सर सा इसके क्वेश्चन बाद बताएं? 20 अप टू 19th कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अप टू 19th एनी स्टूडेंट हैव डाउट? नो सर। नहीं है। चलिए 20th क्वेश्चन देखिए, 20th पूछा बच्चे ने, कह रहा है कि गिवन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1, लेट ए बी द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल which is inscribed in the semicircle with its vertices on the boundary of the semicircle. Boundary includes the bounding diameter also. Then the set of possible values of A. एक semicircle दिया हुआ है बेटे, it is a semicircle, मान लो ए बी डायमीटर है, कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है, इसकी रेडियस कितनी है 1 है, तो डायमीटर क्या होगा 2, इट इज इट्स सेंटर, ये मान लो इसका सेंटर है बेटे। तो कह रहा है इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड हमारे पास क्या हो ए हो और वो इक्विलैटरल हो और उसके वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें, मतलब वर्टिसेस सर्कुलर आर्क पे या डायमीटर पे लाई करें। तो हम एक तो क्या बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना ली, रेडियस क्या है 1 1 और ये भी क्या ले ली मैंने 1 ले ली बेटे। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बन गई जिसकी साइड क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल है ऐसी और नॉट? यहाँ पे ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकती है किस साइड की, 1 साइड की। दोबारा से इसी फिगर को बनाऊं, सेंटर था, कितना है मेरे पास 2। एक बार तो मैंने साइड ट्रायंगल की हाइट 1 ले लूं तो ट्रायंगल में भी क्यू बने तो अनगिनत बन जाएंगी, लेकिन इक्विलैटरल बनानी है हमें, तो इक्विलैटरल बनानी है तो बेटे क्या होगा, इक्विलैटरल बनानी है तो या तो उसकी साइड 1 होगी या उसकी हाइट 1 होगी। तो व्हेन हाइट इज 1 देन व्हाट इज ए क्या आएगा, हाइट क्या होती है h इज इक्वल टू 1, h क्या होता है हमारे पास, h इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड ए मानी मैंने, दैट इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आया 2/√3। अब 2/√3 वो ग्रेटर देन 1 है, तो इससे ऊपर साइड जा नहीं सकती, क्योंकि हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, सेमी सर्कल के अंदर हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है, दैट में बी 1, वो क्या हो सकती है 1 से बड़ी हाइट नहीं हो सकती। तो ट्रायंगल की साइड क्या है ए से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ए विल लाई, मैक्सिमम ए क्या होगा, ए विल बी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 2/√3। ए क्या होगा मैक्सिमम 2/√3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मिनिमम साइड क्या आती है 1, 1 से छोटी साइड अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंगे तो वो ट्रायंगल क्या होगी, सर्कल सेमी सर्कल के अंदर लाई करेगी, वर्टिसेस पे नहीं होगी। जैसे इक्विलैटरल अगर मैं लेने की कोशिश करूंगा तो सर्कल के अंदर रह जाएगी, वो 1 से छोटी अगर मैंने साइड ली तो वो ट्रायंगल कहाँ रहेगी, सर्कल के अंदर रहेगी, वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाइन नहीं करेंगे, बाउंड्री पे लाइन नहीं करेंगे। और अगर 2/√3 से भी मैंने ज्यादा ले ली साइड
तो क्या होगी, वो सर्कल से बाहर चली जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, मतलब वर्टेक्स। तो क्या होगा, दैट विल लाई बिटवीन 1 and 2 अपॉन रूट 3। जो साइड होगी वो क्या लाई करेगी, 1 और 2 अपॉन रूट 3 के बीच में लाई करेगी या उसके इक्वल होगी। इज इट क्लियर? तो जो हमारे पास केस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 and 2 अपॉन रूट 3। हमारे पास जो केस बनेगा वो कि 1 और 2 अपॉन रूट 3 दैट आर इंक्लूसिव। जो ब्रैकेट है वो दे रखा है इंक्लूसिव वाला। होगा बेटे क्लियर? यस सर। अरे क्लियर है, ये वाला ब्रैकेट दे रखा है 1 and 2 अपॉन रूट 3 आर इंक्लूसिव एंड बिटवीन देम, उनके बीच में होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 21 में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। केवीपीवाई में आए हुए क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन। 28 से पहले कोई डाउट बेटे किसी को भी? सर 20 नहीं हो रहा सोल्व। हाँ बेटे बोलिए। 23 सर 23 23, हाँ यही मैं बताने वाला था ये क्वेश्चन। और कोई मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों ने निकाल के देखा होगा, 1 या 2 बच्चों को छोड़ के। चलिए एक बात बताइए, रेज हैंड कीजिए अपना, कितने बच्चों ने क्वेश्चन निकाल के देखा ईमानदारी से? देखिए क्लास भी अपनी मजेदार नहीं हो रही, पता है आपको नहीं हो रही क्लास मजेदार। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 35 स्टूडेंट्स थे इनिशियली और अभी 32 पार्टिसिपेंट रह गए हैं। 3 क्विट कर गए, तो मींस उनका इंटरेस्ट नहीं था। चलिए कोई नहीं, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना तो बेटे पढ़ेगा जब मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। अरे आरपीएस 50 से किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा? 23rd क्वेश्चन बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलिए ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ए sphere, a cone is constructed so that cone and sphere have the same volume. एक तो sphere है हमारे पास, it is sphere and a cone is constructed. Unique cone construct किया गया है, means उसकी जो dimensions हैं that are fixed. Infinite cones नहीं है ऐसा, unique cone. But the total surface volume is equal. इनका volume क्या है? Equal है. Suppose its radius is r, its radius is small r, height is capital h and slant height is l. Volume दोनों पार्ट का वॉल्यूम इक्वल है, v1 इज इक्वल टू v2। तो एक केस तो क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वन केस। दूसरी चीज इसने कहा, बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज k टाइम्स दैट ऑफ स्फीयर, वेयर k इज डिटरमाइंड सो दैट देयर इज ए यूनिक कोन। कोन क्या है, यूनिक है, सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, देन k इक्वल्स टू। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। इसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r इंटू r प्लस एल, यही होता होगा बेटे। दैट इज इक्वल टू k टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया k टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 केस बन गए हमारे पास, लेकिन अननोन टर्म्स देखिए क्या है, 4 है हमारे पास, एच बी है, एल बी है, स्मॉल r, कैपिटल R। तो एक चीज तो हम ले सकते हैं इसमें, क्या l इज इक्वल टू क्या होगा, l विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l क्या होगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इसी से सिंप्लीफाई करेंगे, l रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ से मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं अगर स्मॉल r की, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r क्यूब, इट इज r क्यूब, 4r क्यूब अपॉन h। ये वैल्यू यूज होगी हमारे लिए, काम आएगी। क्या है ये, 4r क्यूब अपॉन h, r स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो पाई दोनों साइड हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो r स्क्वायर प्लस rl, इट बिकम्स 4k r स्क्वायर। अगर मैं फिर से सिंप्लीफाई करूं इसको फिर से सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस r इंटू l इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4k r स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे l की जगह मैंने क्या रख दिया, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर से मैं लिख सकता हूं इसको r स्क्वायर प्लस, इस स्मॉल r को मैं अगर अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट मतलब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो r पावर 4 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4k r स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4r क्यूब अपॉन h लिख सकते हैं, प्लस r पावर 4, r स्क्वायर मेरे पास ये था, तो r पावर 4 क्या होगा, r पावर 4 क्या होगा यहाँ पे 16, कैपिटल R पावर 6
16 कैपिटल R पावर 6 अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ये वैल्यू आ जाएगी R पावर 4 की। तो Yes, R पावर sir. 4 की जगह मैं रखूंगा 16 R पावर 6 अपॉन h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह वही चीज फिर से, R स्क्वायर की जगह क्या रखा जाएगा, 4R क्यूब अपॉन h, और इनटू में क्या है h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4kr स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अरे इज इट क्लियर? ये लाइन क्लियर है आपको सभी को? Yes, sir. फिर से इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, स्क्वायर रूट के अंदर मैं एलसीएम ले लूं, h से h स्क्वायर कट जाएगा h पे, और h स्क्वायर ही मेरे पास अगेन एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 16r पावर 6 प्लस h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r क्यूब h क्यूब, इट बिकम्स h स्क्वायर इंटू h, h क्यूब बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4kr स्क्वायर माइनस 4r क्यूब अपॉन h होगा। अगेन 16r पावर 6 प्लस 4r क्यूब h क्यूब, h क्यूब बना था या h स्क्वायर बना था, h क्यूब इट वाज, और अपॉन h स्क्वायर का एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, h आ गया बेटे। तो दैट इज इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आया h, दैट बिकम्स 4kh r स्क्वायर माइनस 4r क्यूब, h से h कैंसिल हो गया। स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट बिकम्स 16r पावर 6 प्लस 4r क्यूब h क्यूब, दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a इज दिस पार्ट एंड b इज दिस पार्ट, तो क्या बन जाएगा 16k स्क्वायर h स्क्वायर r पावर 4 इट बिकम्स, प्लस 16r पावर 6 इट इज, और माइनस 2ab से 2 इंटू 4 इंटू 4 32kh r पावर 5 होगा। 16r पावर 6 दोनों साइड क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, तो व्हाट कम्स 16 या 32 को इधर ले आए, we can write it as 32kh r power 5 minus 16k square h square r power 4 और प्लस 4r क्यूब h क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0 बनेगा बेटे। Yes, sir. Yes, sir. 4kh कॉमन, 4kh, और दूसरी चीज और भी कॉमन है, r क्यूब कॉमन, व्हाट रिमेन्स 8, 4 कॉमन ले लिया तो kh कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 4, kh कॉमन ले लिया, k स्क्वायर h स्क्वायर में है तो kh r बचेगा, r पावर 4 में से r क्यूब कॉमन आ गया था। एक चीज से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, k कॉमन नहीं है बेटे, यहाँ पे देखिए इसमें k नहीं है मेरे पास, इसमें k मेरे पास नहीं था, तो कॉमन मैंने गलत लिया, 4kh तो कॉमन था ही नहीं, तो क्या कॉमन है 4h r क्यूब कॉमन है हमारे पास, तो क्या बचता है 8k r स्क्वायर, यही बचता है बेटे, माइनस 4k स्क्वायर h 4k स्क्वायर h r, और यहां पे बचता है मेरे पास h स्क्वायर ओनली। इज इट क्लियर? अरे ये Yes, चीज sir. क्लियर है आपको? आइदर Yes, 4h r क्यूब इज 0 और 8k r स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर h r प्लस h स्क्वायर इज 0, दो केस बन गए। यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूं तो r क्या बनेगा मेरे पास 0, रेडियस 0 तो नहीं हो सकती स्फीयर की, फिर तो स्फीयर होगा ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये किस में बन रही है, इन r, वेरिएबल क्या लेते हैं हम r, r हमारे पास क्या है वेरिएबल, r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इसने कहा था देयर इज ए यूनिक कोन इज कंस्ट्रक्टेड, कौन यूनिक है, तो ये r भी यूनिक होगा, ये r भी यूनिक होगा, और k भी यूनिक होगा, इफ कौन इज यूनिक। कौन यूनिक है तो
K और R दोनों ही क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक होंगे तो मीन्स क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज नहीं होगी, एक ही वैल्यू होगी। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वैल्यू कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटे, 0 होगा। देन वैल्यूज क्या होंगी, दोनों सेम, मतलब यूनिक वैल्यू होगी। तो फॉर यूनिक कोन, what discriminant of this equation will be 0। फॉर यूनिक कोन डिस्क्रिमिनेंट क्या लेंगे हम बेटे, इसका 0 लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लेंगे तो बी स्क्वायर, बी क्या बनता है मेरे पास, -4k² h का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो बी स्क्वायर तो मेरे पास ये हो गया, आर तो मेरे पास वेरिएबल है, -4 इंटू ए किस के क्या है मेरे पास 8k, और सी किस के क्या है मेरे पास h², that is equal to 0। and if we simplify it then that becomes क्या बनता है 16 k power 4 h² minus 32 k h² is equal to 0। again 16 k h² common, what remains, k cube minus 2 it is equals to 0। again आप देखिए 16k into h² is 0 और k क्यूब -2 इज 0। दो केस आ गए, यहां से केस लेते हैं तो k तो क्या हो जाएगा 0, k 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k के साथ रिलेशन दिया हुआ था, ये रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या आ जाएगा 0, तो कोन पॉसिबल नहीं होगा। तो k 0 नॉट पॉसिबल, k 0 जो है वो पॉसिबल बेटे नहीं है, k 0 पॉसिबल नहीं है। तो क्या आएगा, k क्यूब -2 इज 0 आएगा, k क्यूब इज इक्वल टू 2 आएगा, एंड k will be equal to cube root 2। k ही निकालना था। इसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये जो स्क्रीन है मेरी, मैं आपको ये भेजूंगा, वीडियो भी मैं भेजने की कोशिश करूंगा, इसका रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसको एक क्वेश्चन को दोबारा से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखोगे तो जरूर समझ में आएगा बेटे। आगे के क्वेश्चन मैं कल ले पाऊंगा, कुछ डाउट्स आपके रह गए हैं तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। एक असाइनमेंट और दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, और उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो मैं नहीं सोचना कि वही असाइनमेंट है, सम क्वेश्चंस में रिपीट। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया है कुछ? यस सर। 10%। इसको दोबारा देखोगे बेटे तो पूरा समझ में आएगा, तो जरूर इस क्वेश्चन को करना आप। और अभी मैं इस क्लास को ओवर कर रहा हूँ, कल के क्लास में हम बाकी बचे हुए डाउट्स लेंगे। एक असाइनमेंट और दे रहा हूँ, उसको भी जरूर करना। एक चीज आपको बतानी थी, आरपीएस नारनौल वाले बच्चे नोट करें, सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। आरपीएस नारनौल वाले बच्चे, आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? शशिकांत सर। शशिकांत सर। उनकी क्लास बेटे आपकी वीक में 3 डेज रहेगी। सर होती नहीं है सर की, तो लेते ही नहीं है सर। बेटे हो जाएगी, अभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी सर से बात हुई है। साथ में बेटे बलवंत सर है एक, शायद कुछ बच्चे जानते भी हो बलवंत सर को। 3 दिन बेटे आपकी क्लास हो गई बलवंत सर की। कल सुनील सर ने आपके साथ शेयर किया था आपका जूम टाइम टेबल, उसमें भी आपने देखा होगा 10th A3 बलवंत सर 3 डेज क्लास है। यस सर। वो क्लास होनी थी बेटे आपकी 9 से 10, लेकिन सुनील सर को आज कोई अर्जेंट वर्क था, तो इंग्लिश की क्लास आज 9 से 10। बलवंत सर की क्लास 1 से 2 बजे के बीच होगी, मिस ना करें, फर्स्ट क्लास है आज उनकी। उनकी क्लास 3 दिन होगी, 3 दिन शशिकांत सर की क्लास होगी। उनसे आपको हेल्प मिलेगी, किसमें, सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी और ऑब्जेक्टिव में मिलेगी। और शशिकांत सर आपका जो कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। टीचर की फर्स्ट क्लास है तो उसमें प्रेजेंस भी शो करना और कोऑपरेट भी करना। ओके बेटे? यस सर। यस सर। नई टीचर को वेलकम भी करते हैं, रिगार्ड भी करते हैं। ठीक है, रिगार्ड तो वैसे पुराने को भी करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं करते हो तो चल जाता है। करते तो नहीं हो, क्योंकि मैं 4 बार बोलता हूं तब एक बार आवाज आंसर देते हो आप। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे क्या मैं सही कह रहा हूं? नो सर। तो नो आंसर नहीं सर। देते। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एक बार मैं आरपीएस 50 वाले बच्चों से, आरपीएस 50 वाले बच्चे अगर यस सर। बेटे आपकी क्लास से अपने फ्रेंड से उनसे भी बात किया करो, थोड़ा बात होती भी होंगी आपकी उनसे। तो कम बच्चे आ रहे हैं, जैसे आज मैं देख पा रहा हूँ आपकी क्लास से 5-6 बच्चे हैं, लेकिन आप जो आ रहे हो
बहुत अच्छे हो। तो अभी केवल 5 स्टूडेंट्स हैं, आरपीएस 50 से 6 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे अभी। तो बेटे आप ये असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। हर क्वेश्चन बेटे निकाल के देखा करो, वीडियो के बाद लेक्चर के बाद भी क्वेश्चन किया करो। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो आप ये मान लें कि बेटे वो क्वेश्चन आ गया। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटे, पेपर और पेन के बगैर कभी भी नहीं आएगा। ना इसका वीडियो देख के कि कोई भाई हिंदी मूवी है या इंग्लिश मूवी है वो हमने देखी और मजा आ गया तो उसका सॉन्ग याद रह गया, ऐसा नहीं है मैथ्स में बेटे। ये एक ऐसी मूवी है इसमें हमें किरदार में खुद उतरना पड़ेगा, हमें वो सीन खुद से लाइव देना पड़ेगा, हमें वो चीज करनी पड़ेगी एक्टिविटी, तब हम वो पूरा उस फिल्म पे उतर पाएंगे। ठीक है बेटे? ओके सर। आरपीएस 50। तो हर क्वेश्चन बेटे सोल्व किया करो, नहीं आता है आप मेरे से पूछा करो। जो आपका मैंने मैथमेटिक्स डाउट ग्रुप है उसमें शेयर किया करो, उसमें आप आपस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए मैं उस ग्रुप में सोल्व करके बहुत कम रेयर से रेयर डालता हूँ कि बच्चों को अपने आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने दें। तो कोई बच्चा क्वेश्चन डालता है, मैं नानोल वालों को भी कहना चाहूंगा ये बात, किसी बच्चे ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला तो उस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप सोल्व किया करो, जिससे कि 2 3 4 मेथड आपको आपस में मिल जाए, शेयरिंग हो जाए आपकी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.